Good morning, good afternoon, and good evening to all my students and other viewers. I'm Daraksha Aftab, and we are doing the chapter Indigo from the book Flamingo. This is video for class 12, JAC, as well as CBSE. They can also benefit from it. So, in the previous lecture, we discussed about how there was a peasant named Rajkumar Shukla who was also a sharecropper, and he was facing some kind of difficulty in his place Champaran from where he came, and he wanted help, and somebody told him कि जाओ जाके गांधी से बात करो तो तुमको तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा. So he went to Gandhi, and Gandhi at first, Mahatma Gandhi, he at first was not willing to help him, but क्योंकि वो उस इंसान का, राजकुमार शुक्ला का, वो डिटर्मिनेशन देखे कि कितने टालने के बावजूद वो इंसान अभी भी मेरे पास रुका हुआ है, वो मेरा हेल्प चाहता है. फाइनली ही सेड ओके, आई एम गोइंग टू कैलकाटा ऑन दिस एंड दिस डेट, यू कम एंड मीट मी देयर. सो दिस वाज द एंटायर क्रक्स जो हम लोग पढ़े थे. नाउ दिस स्टोरी, ये कौन किसको बता रहा है? ये स्टोरी गांधी लुई फिशर को बता रहे हैं. लुई फिशर जब उनके पास 1942 में सेवाग्राम आश्रम में गए थे, तो वहां पर गांधी उनको ये स्टोरी बता रहे कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, हम कैसे ब्रिटिशर्स को बाहर निकाले और कैसे वो पुश किए कि ब्रिटिशर का जो कब्जा था इंडिया पे वो हट सके. ये सब स्टोरी गांधी इज टेलिंग टू लुई फिशर. ठीक है, लुई फिशर फिर हम लोग को रिटन फॉर्म में ये चैप्टर के फॉर्म में स्टोरी दिया है. ओके, लेट अस बिगिन. पेज नंबर 47 in complete English translation. You just see the line, it's here also on the screen, I've marked it so you don't have any problem. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla was a poor yeoman, Y-E-O-M-A-N. You can see on the screen as well. Matlab ki again peasant, very poor farmer kind of, who pestered their master to help the indigo sharecroppers, who forced their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. So just let us understand. Months passed. Shukla was sitting on his haunches. So जो टाइम पे गांधी बोले थे कि तुम यहाँ हमको मिलना, राजकुमार शुक्ला was sitting there on his haunches. Again, haunches, the position how you sit on the floor. It's also on the screen so that you can understand. Okay, so he was sitting there. He was waiting for Gandhi, and when Gandhi arrived, they both boarded the train for Patna. And when they reached there, they went to a lawyer's house. And what was the name of the lawyer? Rajendra Prasad. Now he's obviously, we know he's the first president of India. So who later became the first president, obviously, when we're talking here about him. He was there, just a lawyer, a common man, and Rajkumar Shukla and Gandhi, both of them went to that lawyer's house, Rajendra Prasad's house. Now, Rajendra Prasad was not at home during that time. एंड जो वहां के जो स्टाफ थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि ये एक पुअर योमन है. योमन अगेन फार्मर पेजेंट है, तो वो उसको उसी तरह से ट्रीट कर रहे थे. उसके कंपेनियन गांधी को भी वो स्टाफ लोग समझे कि ये भी वन ऑफ द पेजेंट है, जबकि गांधी वाज नॉट अ पेजेंट, ही वाज नॉट अ फार्मर, बट उनको भी ऐसा परसीव किए. क्यों? क्योंकि द वे ही ड्रेस, द वे ही यूज्ड टू बिहेव, तो लोग को लगा होगा कि अच्छा ठीक है, ऐसे भी ही is not wearing proper clothes, तो ये भी a kind of farmer, low class farmer होंगे. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? So यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है कि गांधी को अलाउड नहीं था that वो जाके वहां से पानी निकाल सके, क्योंकि अगर एक बूंद या 2 बूंद भी पानी अगर पड़ जाता तो वो पूरा बकेट जो है इंटायर सोर्स को पोल्यूट कर सकता था. काइंड ऑफ, बिकॉज पेजेंट्स वर ट्रीटेड सॉर्ट ऑफ अनटचेबल्स. जो लो क्लास के लोग होते हैं उनको अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता. आज भी लोग करते हैं, अगर वो कुछ छू दे तो तुम नहीं खाना पसंद करोगे एंड ऑल दोस थिंग. हाइजीन इज अ डिफरेंट थिंग, बट कास्ट को लेके, पोजिशन को लेके, क्लास को लेके आज भी बहुत लोग डिफरेंशिएट करते हैं. यहाँ पर गांधी
को भी उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे, तो लोग उनको उसी शेयर क्रॉपर या पेजेंट समझ रहा था। ओके, Gandhi decided to go to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. So Gandhi said, ठीक है, चलो हमको एक इंसान है जो हमको ये सिचुएशन के बारे में बताया है कि बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोग को, पेजेंट्स लोग को, लैंडलॉर्ड्स जो है वो बहुत अपना दबाव लगा रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। बट गांधी सोचे कि क्यों नहीं हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए चल जाते हैं, क्योंकि हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो राजकुमार शुक्ला से मिला है और वो उतना ज्यादा कंप्लीट नहीं है कि हम समझ पाए सिचुएशन कैसा है। तो यहाँ पर गांधी क्या डिसाइड करते हैं, ही वेंट टू मुजफ्फरपुर, जो चंपारण विच इज एन रूट टू चंपारण, चंपारण के रास्ते में पड़ता था, एंड वो वहां जाके एक पूरा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी of Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan School. So now देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बात आएगा। तो जब हिस्टोरिकल बात आता है तो हम लोग का जो बल्ब है, फ्यूज, वो बंद होने लगता है या उड़ जाता है। वी डोंट अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट। बट जो नाम दिया गया है, J.B. कृपलानी होंगे या आगे और भी प्रोफेसर होंगे, राजेंद्र प्रसाद, तुम बस इसको ऑन अ सरफेस लेवल ध्यान में रखना कि ये लोग कौन थे, उतना रटने का जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट हैव एन आइडिया कि ये लोग कौन थे, ठीक है, सो दैट अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, यू आर एबल टू आंसर। जस्ट हैव एन आइडिया। इफ यू आर अनेबल टू रिमेंबर द नेम एट वंस, प्लीज डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ कि आपको याद करना है, हमको अच्छे से इसको समझना है अभी। नो, जस्ट लेट योर माइंड अब्सॉर्ब जितना वो समझ पा रहा है एक वीडियो लेक्चर से, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर तुमको समझ में आएगा, अच्छा हम ये समझ गए, फिर दोबारा देख लेना। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स। So don't pressurize yourself, don't take too much, don't worry a lot, क्योंकि तुमको by the end of the day समझ में आ जाएगा। Okay, so यहाँ पर गांधी जब मुजफ्फरपुर गए to get a more clear information, वो किसको टेलीग्राम कर दिया। ऑब्वियसली उस टाइम फोन नहीं हुआ करता था, तो वो कॉल कर नहीं सकते, तो वो टेलीग्राम भेज दिए जहां पर वो J.B. कृपलानी एक प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज को, उनको इन्फॉर्म कर दिए ऐसा ऐसा बात है, आप आ जाइएगा, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। Why? Because he was building the support, क्योंकि किसी भी स्ट्रॉन्ग पोजिशन या पावर या अथॉरिटी से लड़ने के लिए हमेशा लोग का स्ट्रेंथ चाहिए होता है, एक पब्लिक का स्ट्रेंथ चाहिए होता है। कोई भी सिचुएशन हो जहां पर हम लोग को अगर अथॉरिटी से लड़ना है तो हम लोग को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है, पब्लिक सिविक सपोर्ट, जो सिविल होते हैं, जो हम लोग होते हैं। सो दैट्स व्हाई ही इज इन्फॉर्मिंग ऑल दोज पीपल जो कुछ पोजिशन में है। So, what did we see? That the train arrived at midnight on 15th April 1917. Kriplani was waiting at the station with large body of students. तो जब वो लोग मुजफ्फरपुर पहुंचे गांधी, वहां पर J.B. कृपलानी जो प्रोफेसर है अपने स्टूडेंट्स के साथ, they were waiting there. Large body does not mean body. Here, large body means a lot of students, a number of students. He was waiting with them. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani. Now एक दूसरे प्रोफेसर हैं, उनके घर में प्रोफेसर मलकानी, उसके बाद क्या लिखा है, लुक हियर, टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। सो वो J.B. कृपलानी जो एक आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनको इन्फॉर्म कर दिए कि हम मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता है, क्योंकि हमको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हो क्या रहा है। तो वो J.B. कृपलानी को जब इन्फॉर्म करते हैं, तो वो गांधी जब उतरते हैं स्टेशन पे, तो वहां पर ऑलरेडी देयर इज अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर वेट कर रहे हैं। गांधी जाके रुकते हैं मलकानी के घर पे, एंड मलकानी हियर इज अ गवर्नमेंट टीचर। नाउ व्हाट इज रिटन आफ्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी हियर। It was an extraordinary thing in those days, गांधी commented। ये गांधी ऑब्वियसली स्टोरी बता रहे लुई फिशर को, हम लोग को ये रिटन फॉर्म में। ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात था कि उन दिनों एक गवर्नमेंट प्रोफेसर को एक आम आदमी, मेरे तरह आदमी जो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में इतना हिस्ट्री रह चुका है, जो हम फेमस है कि हम अथॉरिटी के खिलाफ जाते हैं, ऑल दोज थिंग्स, ऐसा आदमी को अपने घर में रखना बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, और जो भी गवर्नमेंट जॉब को बिलोंग करते हैं उनको गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोई गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट IAS ऑफिसर है, गवर्नमेंट कुछ और है, तो उनको क्या होता है कि वो गवर्नमेंट से लिंक्ड है, तो वो कुछ भी करेंगे, दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल, उनको उनका उस चीज का आंसर देना पड़ेगा।
तो यहाँ पर गांधी ये बताना चाह रहे हैं, व्हाट ही इज सेइंग, जस्ट लेट मी रीड एंड देन आई एक्सप्लेन. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. क्या मतलब है? ये बोल रहे हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए, गवर्नमेंट के लिए जो काम करता है, उस इंसान के लिए एक मेरे जैसा आदमी जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते रहता है, उसको अपने घर में जगह देना बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बात था. क्यों एक्स्ट्रॉर्डनरी बात था? क्योंकि उस जमाने में इन स्मॉलर लोकेलिटीज इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी टू पीपल फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. एडवोकेट्स जो उस चीज के लिए लड़ रहा है, जो उस चीज के लिए साथ दे रहा है, जो उस चीज के लिए खड़ा हो रहा है, वो होता है एडवोकेट. नाउ जो लोग होम रूल को सपोर्ट कर रहे हैं, होम रूल यहाँ पर क्या होगा? होम मतलब इंडिया, इंडियंस लोग रूल करेंगे. इंडियंस लोग का, इंडियन का कंट्री, तो इंडियंस लोग ही पावर में आएंगे. लेकिन उस टाइम ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे. तो ब्रिटिशर्स को के अगेंस्ट जाके यहाँ पर गवर्नमेंट कौन है? हु इज द गवर्नमेंट हियर राइट नाउ? It was not Congress or BJP at that moment. The government that moment before independence was British government. तो जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ सजा मिलता. वो उस जमाने का बात है, इंडिपेंडेंस के पहले का. अब उसको कुछ ना कुछ सजा मिलता जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता. इस डर से बहुत लोग उन लोग का सपोर्ट नहीं करते थे जो लोग ब्रिटिशर के अगेंस्ट खड़ा हो रहे हैं और चाहते हैं कि इंडियंस ही अपने कंट्री को रूल करे, अपने कंट्री को गवर्न करे. तो बहुत लोग वैसे लोग से दूर रहते थे, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल. लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज हुआ क्योंकि गवर्नमेंट टीचर थे मलकानी, वो गांधी जैसे इंसान को अपने घर में जगह दिए रहने का. और गांधी जैसे इंसान मतलब वो जो एक अजीब सा गवर्नमेंट जो जुल्म ढा रहा है उसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, जो ऐसा गवर्नमेंट या किसी भी चीज के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है जो कि गलत है. तो वैसा इंसान को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो बहुत सरप्राइजिंग बात था, बिकॉज वैसा उन जमाने में होता नहीं था. नाउ अंडरस्टैंड व्हाई आई सेड दैट दिस स्टोरी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ सोशल, मॉरल एंड एकेडमिक लेवल. बिकॉज यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो अपने आप के अगेंस्ट, किसी भी इंसान अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है, उसको अगर पकड़ के जेल में बंद कर रहा है या उसको अगर पकड़ के मार रहा है, तो ये ब्रिटिश जमाने में होता था क्योंकि उस वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था. अगर ये आज सेम चीज हो रहा है, विच मीन्स आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट. क्यों? क्योंकि आज भी हम लोग को आवाज उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा है. आज भी हम लोग को बहुत सारी चीज का बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है. अगर ऐसा हो रहा है, अगर नहीं तो यस वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. बट अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर के अगेंस्ट है, एंड अगर हम लोग को पकड़ा जा रहा है उस चीज के लिए, दिस इज रॉन्ग. बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस 15th August 1947, after that we all are independent individuals, independent citizens. So we have a complete right to say whatever we feel. We have a complete right to go against any form of government because we have been given that democratic right. तो जब ब्रिटिश के अगेंस्ट जाता था उनको पकड़ के वी ऑल नो जेल में बंद कर दिया जाता था एंड ऑल दोज थिंग्स. गांधी भी ब्रिटिश के अगेंस्ट इस सेंस में जा रहे थे क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट था और वो अच्छे से रूल नहीं करके बहुत सारा गलत चीज कर रहा था. इस चीज के अगेंस्ट गांधी जा रहे थे. सो ऑब्वियसली गांधी को पकड़ा जाता. इस वजह से वो छुपते हुए या फिर एक सपोर्ट के साथ, जेबी कृपलानी और स्टूडेंट्स का सपोर्ट या सपोर्ट के साथ वहां पहुंचे और एक घर में जाके रहने लगे. ओके, आई होप टिल हियर इट इज क्लियर. I am trying to go slow in the beginning of the chapters. Why? Because I want you all to enter that phase and to understand how the flow of the chapter is. Once you get used to it, then I'll increase my speed and then I'll keep on progressing. Okay, so we'll meet again on Tuesday with the further chapter, and it is going to be, and I'll not say it is going to be fun because obviously it's history, but I'll try to make more and more interesting as I could. So thank you so much for watching. And yes, one more announcement that there is a series 3-in-1 which has started. There's a series 3-in-1 which has been started, and it is only for the purpose of
teaching you all new words or less used words and make you more well versed with English as a language. So you can go and check. The link is also given in the description box, and it's also there on my channel. So you can just go and have a look and watch and learn. Okay, so thank you.